Hello guys, welcome to Informative.com. Today we will discuss whether this demonetization scheme in India be a biggest cause of biggest recession in India or not, and should we call it a biggest surgical strike on black money or not. Before starting the topic, let's see some pics. I have shown you some pics in which you can clearly see that most of the ATMs are out of service or out of cash. So why they are out of cash? There are two main reasons for it that they are out of cash. First, I am going to show you some data which I googled. This is not verified data, but I found it on Google. So this 2300 crore, 600 crore and 1700 crore. This 2300 crore is the amount that to be printed by government. There is a new currency to be printed by government in 8 to 9 months, and this 600 crores is total money printed by government in approx 2 months, and this 1700 crores money is to be printed by government in approx 5 to 6 months. So government doesn't have new currency to refill the ATM, and second reason, government doesn't have 100 rupees note, the most demanded 100 rupees note in the India system nowadays. Government doesn't have 100 rupees note. Why? Because it's high demand. All of the 100 rupees note are with the public. Government banks, private banks are running out of 100 rupees note, so they can refill the ATM. These are the two main reasons why the ATMs cannot be refilled, and they are out of most of the time they are out of कैश. सो अब आप इसे इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम के लिए गलत अनुमान समझें या फिर इस स्कीम के साथ मार्केट में जल्दी आना समझें. You might be thinking how this all information, all data is related to biggest recession in India. First, let me tell you what is recession. Recession is a period of temporary economic decline due to which ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर स्लोड डाउन और रिड्यूस्ड. मैं आपको हिंदी में भी बता दूं, रिसेशन को हिंदी में मंदी कहते हैं. रिसेशन एक ऐसी अवधि है जो अस्थायी आर्थिक गिरावट के कारण ट्रेड और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को कम करती है, गिराती है, जो कि जीडीपी में गिरावट का कारण बनती है. इसी को हम रिसेशन कहते हैं. तो मैं आपको कुछ इंडिया के बिगेस्ट सेक्टर्स के बारे में बता दूं, उनकी कंडीशंस के बारे में बता दूं जो कि इंडिया के जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं. फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट. ये 5 बड़े ऐसे सेक्टर हैं जो कि इंडिया के जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं, और ये पांचों के पांचों अभी बहुत ही बुरी हालत में है. अब इन बुरी हालत के इन पांचों सेक्टरों की बुरी हालत के पीछे 3 बड़े कारण हैं. पहला कारण ये है कि इनके पास अपने फिनिश गुड्स सेल करने के लिए ये न्यू करेंसी डिमांड करते हैं, जो कि भी पब्लिक के पास नहीं है. और सेकेंड रीजन ये है, इनको अपने फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज को, जो कि नई करेंसी में ही लिया जा सकता है, वो इन पे नहीं है. और थर्ड, इनको सैलरी के रूप में देने के लिए अपने वर्कर्स को, लेबर्स को, एम्प्लॉय को सैलरी के रूप में देने के लिए न्यू करेंसी नहीं है, जिसके कारण इनके न्यू एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं. जैसा कि मैंने अभी आपको इंडिया के सेक्टर्स के बारे में बताया, इसी तरह इंडिया के ज़्यादातर सेक्टर अभी लो प्रोडक्टिविटी शो कर रहे हैं, लो गिरावट शो कर रहे हैं, जो कि आने वाले साल में 2017 में जीडीपी में काफ़ी बड़ी गिरावट का कारण बनेंगे. और या आप भी फील अभी भी कर रहे होंगे कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी गिरावट का कारण बनेंगे. अब मैं आपको बताऊंगा व्हाई इट शुड नॉट बी कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी. लेट मी शो यू सम डाटा. 42 billion, 51 billion.
This 42 billion is total black money received by government through compliance window of 3 months, which was introduced in 2016. And this 51 billion, I googled this data. This is not verified, but Google, India's most of the sectors are facing 51 billions of loss every day. So as you can see, this 51 billion one day loss is more than 3 months black money. So how this scheme, demonetization scheme, can be called surgical strike on black money? अब मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया 1700 करोड़ की न्यू करेंसी अभी गवर्नमेंट को प्रिंट करनी है, जिसमें 5 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। अगर आपके पास 100 रुपीज़ की पुरानी करेंसी और नए नोट हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप उनको वेस्ट ना करें और सही टाइम और सही जगह आने पे ही उनको खर्च करें, क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन स्कीम कितनी लंबी और कितनी वर्ष सिचुएशन में जा सकती है, अभी आपको और हमको इसका आइडिया नहीं है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन बाय शेयरिंग द वीडियो। थैंक यू।